All right, welcome back, everyone. फिर से आपका सभी का स्वागत है। Okay, you had a good break? क्या आपका अच्छा विराम मिला आपको? Okay. All right. So let's go forward. Point number 5. ये है 5वें बिंदु पे हम जाते हैं। We are then the next area that we need to prepare ourselves और जो दूसरा भाग है जिसमें हमें अपने आप को तैयार करना है वो ये है is to overcome past abuse, trauma, and other negative experiences in life. तो पिछले दुर्व्यवहार, सदमा और नकारात्मक अनुभव पर जय पाना। Okay, I'm just getting a message here for online students that some of you may lose connection. Devaraj, DH Devaraj, in case you lose connection, please connect back. In case your connection to the class goes down. देवराज, आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका कनेक्शन टूट चुका है तो फिर से जुड़ सकते हैं आप। Oh, sorry, I should have waited. Yeah. Okay. So, for some of us, we may go through difficult things in our childhood. हाँ, और हम में से कई ऐसे हैं जो बचपन में कुछ ऐसे दुर्व्यवहार से गुजरते हैं। Maybe we were abused. Maybe we went through certain trauma while growing up as children. हम जैसे बढ़ते हैं, शायद कभी कभी हम दुर्व्यवहार से गुजरे होंगे या सदमे से गुजरे होंगे या नकारात्मक अनुभव से गुजरे होंगे। Maybe we grew up in a home where our parents and the marriage that we saw was not good. और हम ऐसे परिवार में हमारे परवरिश हुई है जहां पर विवाह या फिर कोई और जो है वो सही रीति से नहीं आदर्श के रूप में था। For example, if a girl is growing up in a home where the father is very, very abusive. और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम ऐसे परिवार में शायद हमारा परवरिश हुआ होगा जिसमें पिता जो है बहुत दुर्व्यवहार करता था। In her mind, she's wondering, will my husband also be like this? उसके दिमाग में ये भी चलता होगा, उसके बुद्धि में, क्या मेरा भी पति शायद ऐसा ही होगा? So that is in her mind. और उसके दिमाग में ये चल रहा है। You can't blame her because she grew up in that kind of a home. अब उसको दोष नहीं दे सकते, वह ऐसे परिवार में उसका परवरिश हुआ है। But the problem is, when she gets married, any little indication of similarity between her husband and her father, she thinks, oh, my husband is going to be like my father. जब उसका विवाह होता है वैसे स्त्री का, जब उसमें कुछ गुण उसके पिता के अगर उसके पति में दिखते हैं तो उसको ऐसा ही ऐसा लगता है, उसको ऐसा ज्ञात होता है कि मेरा पति भी मेरे बाप के जैसा ही है, दुर्व्यवहार करने वाला। It's not the husband's fault. ये उसका पति का गलती नहीं है। Maybe he's a very good person. वो अच्छा व्यक्ति है। But because in her mind she's carrying this memory, this remembrance of how her father used to be very abusive, she thinks husband's also going to be like that. उसके दिमाग पर या उसके बुद्धि पर ऐसा चित्र छवि, उसका पिता का दुर्व्यवहार का छवि ऐसा बन चुका था, उस रीति से वो अपने पति को भी उसी दृष्टिकोण से देखती है। So maybe her father used to comb his hair in a certain way. शायद उसका पिता ऐसा बाल बनाता होगा, उस स्त्री का पिता। The husband also combs his hair like that. उसका पति भी वैसे ही बाल बनाता है। Oh, he's going to be like my father. अरे, ये मेरे पिता की तरह ही होगा शायद। No, he's only combing his hair. नहीं, वो केवल बाल बना रहा है। But in her mind, because of the trauma she's gone through, anything her husband does that reminds her of her father, it will trigger negative emotions in her. क्योंकि उसके परिवार के वो हादसे के जरिए, वो दुर्व्यवहार के जरिए उसका पति जो भी कर रहा है, अगर गलती से भी उसमें उसका बाप का मेल लिखता है तो उसको ऐसा लग जाता है कि मेरा पति भी मेरे पिता की तरह ही है। Are you understanding? क्या समझ में आ रहा है? Right? So it will therefore affect how she relates to her husband. ये उस पर उतना प्रभाव डालता है जितना वो अपने पति से जुड़ती है।
So like that, there can be so many things that, और ऐसा that बहुत people सारी have gone बातें through in their childhood, which could affect their marriage. और ऐसा बहुत सारी बातें हैं जो लोग अपने बचपन में ऐसे दौर से गुजरे हैं तो उसके विवाह पे इस तरह से ये वो प्रभाव इन पे ये प्रकट होता है. Think about, smoking and drinking or drugs. और कभी कभी ये भी सोचो कि पीना, धूम्रपान करना, शराब पीना या नशीले पदार्थ को लेना, ये जुआ आदि के बातों को 5 weeks before the marriage, husband has stopped drinking. और 5 weeks 5 weeks. 5 हफ्ते पहले पति जो है वो शराब पीना छोड़ देता है. Before that, 5 years he was drinking. उसके पहले 5 साल तक वो शराब पीता था. But because wedding is coming, he tells his wife, see, I have given up everything. I am very clean now. 5 weeks, no drinking. So विवाह का समय जब नजदीक आया तो वो अपनी पत्नी से कहने लगा, देख मैं पहले पीता था, अभी 5 हफ्ता हो गया, मैं नहीं पी रहा हूँ अभी. So wife thinks, he's given up. तो पत्नी को लगता है उसने छोड़ दिया. 1 week after wedding, एक हफ्ता शादी के बाद का एक हफ्ता गुजरने के बाद backslid again. फिर से वो पीछे चला जाता है. And that is a big problem. वो बहुत बड़ी समस्या है. And some I have seen. और मैंने कुछ लोगों को देखा है. Some marriages, the husband can be very educated and so on, but just because he has the drinking problem, it has ruined not only his life, but the marriage. It's really affected the marriage. अब कुछ लोगों को देखा कि बहुत पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी शराब के कारण उसके विवाह में बहुत आपत्ति आ जाती है. So be careful. इसलिए सचेत रहिए. So you have to really make sure that the person is not bringing in their own addictions, problems into the marriage. तो हमको निश्चिंत होकर देखना है कि वो व्यक्ति जो है विवाह कर रहा है वो ऐसे दौर से नहीं गुजर रहा हो. So like this, we have to look at our own lives. इस तरह हम अपने जीवन को इस तरह देख सकते हैं And see if we are having any problems in our lives, और देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा समस्या होगा तो, and ask God to heal us. और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझे इसमें चंगाई दे. Ask God to make us whole, परमेश्वर से कहे कि मुझे पूर्ण बना, so that when it comes time for your wedding, you can go in as a whole person. तो जब आप ऐसा कहेंगे परमेश्वर, जब आपका विवाह का समय आएगा तो परिपूर्ण व्यक्ति के तौर पर आप मंच पर चढ़ेंगे अपने विवाह के अंदर. 2 more things we'll talk, and then we'll take a few minutes to pray. और 2 बातों को बताएंगे, उसके बाद में हम दुआ करेंगे. Sexual purity, number 6, sexual purity. यहाँ पे देखा गया है कि यौन शुद्धता. So it's very important as part of your preparation for marriage that you keep yourself sexually pure. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे अपने विवाह की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को यौन जो सेक्स कहते हैं उसमें हमको शुद्ध रखना है. Right? So sex must be enjoyed after marriage. और यौन का जो आनंद है वो विवाह के बाद हमें लेना चाहिए. Okay? So that is, it must be very clear in your mind. आपको ये बहुत स्पष्ट रीति से होना चाहिए. This is what the Bible teaches us, what God teaches us. इस तरह से बाइबल हमें सिखाता है, इस तरह से परमेश्वर हमें सिखाता है. Yeah? Hebrews chapter 13 and verse 4. विवाह का आदर करे और पति पत्नी के बीच में यौन घनिष्ठता की पवित्रता की रक्षा करे. परमेश्वर के मनमाने और गैर कानूनी यौन संबंध के विरुद्ध में एक दृढ़ रेखा खींचता है. So, sexual intimacy is between a husband and wife. और यौन संबंध है केवल पति और पत्नी के बीच में होता है. So be careful about other substitutes like pornography and so on. इसके बदले कोई और जगह न ले, इसका बहुत ध्यान रखना, जैसे कि पोर्नोग्राफी, गलत चित्र को देखना. That can, if that becomes an addiction, marriage is not going to remove that addiction. तो अगर आपका वो व्यसन है अश्लील चित्रों को देखना, विवाह इस व्यसन से आपको मुक्ति नहीं दे सकती. Some people say, oh, after I get married, I will stop. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं जब मेरा विवाह होगा तो इससे मैं छुटकारा प्राप्त कर लूंगा. I know of cases where even after marriage, the husband has continued in pornography and the wife is so broken
Why is my husband doing this? मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण के तौर पे लोगों को देखा है हमारे कलीसिया के अंदर कि कुछ लोग जो रहते हैं कि शादी विवाह होने के बाद भी अश्लील चित्रों को वो देखते हैं, जिससे उसका प्रभाव उसके विवाह पर गिर जाता है और पत्नी परेशान हो जाती है। It makes the wife feel so worthless, so useless. तो उसके पत्नी को स्वयं के बारे में अयोग्यता महसूस होने लग जाती है। And it can work the other way also. If the woman is also caught up in pornography and looking at these, the husband will be wondering what's wrong with me. तो कभी कभी ऐसे भी होता है, ये दूसरे तरीके से भी काम करता है। अभी पति के बारे में देखा, पत्नी को भी शायद इसका व्यसन होगा। अगर ऐसा होने से पति ये सोच में होता है कि क्या खराबी है मेरे अंदर। I understand. क्या आपको समझ में आ रहा है? So in this area, you have to keep yourself pure. और इस क्षेत्र में आपको अपने आप को शुद्ध या पवित्र रखना है। And God will give us the grace to keep ourselves pure. और परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए। And marriage will not, if we are in bondage, marriage is not going to remove that bondage. अगर हम बंधनों में हैं तो विवाह इसका उपाय नहीं कि बंधन तोड़ने का। Before, you'll be an unmarried man who's in bondage. After that, you'll be a married man who's in bondage. पहले ऐसे बंधन में थे, अविवाहित होने का ना बंधन में थे, उसके बाद में विवाहित के बाद भी आप बंधन में ही रह गए। Marriage will not change it. और विवाह ऐसे बदल नहीं सकता। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes. क्या आपको समझ में आ रहा है? So you and we have to ask God, Lord, help us to keep ourselves pure in this area. और परमेश्वर हमें पूछना कि परमेश्वर इस क्षेत्र में मुझे पवित्र रख दो। And number 7, last one. 7वां बात, How to prepare yourself. किस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं? Prepare yourself in Christian, in your faith, with maturity, in your calling and in your ministry. यहाँ पे देखते कि 7वां मसीह परिपक्वता, बुलाहट और सेवकाई। So until you get married, जब तक आप विवाह नहीं करते हैं, concentrate on growing up spiritually. और आप इस पे लक्ष्य ध्यान लगाए कि आप मसीह में आगे बढ़ते जाए। Right? Concentrate on your spiritual growth. और आत्मिक परिपक्वता की ओर इस पे ध्यान लगाए। And also concentrate on growing in your calling as a believer. What has God called you to do? आप आत्मिक उन्नति और मसीह बुलाहट की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित करें। So you focus on that. You grow in that. आप उसमें ध्यान दीजिए, उसमें लक्ष्य लगाए, उसमें विकसित हो। So in your local church, you serve, you grow with other believers, you grow in whatever God has called you to do. You keep growing. तो स्थानिक कलीसिया में अपने आप को सेवकाई में व्यस्त रखे, जो लीडर उसके साथ में कार्य करे, कलीसिया में जो भी काम मिलता है उसमें सहभागी हो आप। इस तरह अपने आप को बढ़ा सकते हैं आप। So that is also part of your preparation for marriage. वो एक भाग है विवाह के लिए अपने आप की तैयारी करना। Are you with me? क्या मेरे साथ में हो आप? So let us review these 7 things. और आइए इस 7 बातों को हम दोहराएंगे। How to prepare yourself for marriage. किस तरह से विवाह की तैयारी हम करेंगे। First, we said, become the best person that you can become. पहले हमने कहा कि सर्वोत्तम व्यक्ति बनना, जितना सर्वोत्तम आप बन सकते हो उतना सर्वोत्तम व्यक्ति आपको बनना है। Yeah, just like you're going to buy some good clothes for your wedding day, you also prepare yourself now to be the best person you can be. जिस तरह आप अपने विवाह के लिए अच्छे कपड़े खरीदते, उसी तरह आप भी अपने आप को अच्छा व्यक्ति बनाइए। Second, emotionally, make sure you're whole and healthy. और दूसरा जो है आपका भावनात्मक स्वास्थ्य, आप ये अपेक्षा करें कि अपने आप को भावनात्मक रूप में स्वस्थ बना के रखें। Number 3, तीसरा, develop the personal management. That means learning how to manage yourself in your career, in managing money, in time, and the skills for the family. जो तीसरा जो व्यक्तिगत प्रबंध, करियर, पेशा में बढ़ना है हमें, और घर का काम कैसे करना है, नौकरी कैसे करना है, पैसा, समय का प्रबंध, इसमें कैसे बढ़ना है, घरेलू काम में भी। Number 4, in relating to people, how to communicate properly, how to respect the roles in marriage and respect family members. और चौथा जो संबंध कौशल, इसमें आपको बढ़ना है कि किस तरह से आप परिवार से वार्तालाप करेंगे, विवाह में जो भूमिका उसमें ससुराल के साथ में किस तरह से आप
अपने संबंध को बढ़ाएंगे अच्छे रीति से। Number 5, if there has been things that have happened in your past, with abuse or trauma or negative experiences, asking God to heal you from those things. तो अगर आप भूतकाल में आपके साथ में दुर्व्यवहार या सदमा या नकारात्मक कुछ अनुभव हुआ है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इससे मुझे उभारे। Number 6, you commit yourself to keeping yourself pure. और जो छठवा जो है, आप अपने आप को यौन शुद्धता के अंदर बढ़ाइए। And number 7, from now till you actually get married, you continue to grow in your spiritual life and in your calling and ministry. और सातवां जो है, जब तक आपका विवाह नहीं होता तब तक आप मसीही परिपक्वता में बढ़ते जाए, अपने बुलाहट और सेवकाई में बढ़ते जाए। All right. ठीक है, Before we go to prayer, हम प्रार्थना करने से पहले you see this little table that's there under application. क्या आप 20वें पेज नंबर पे देख सकते हैं, एक टेबल वहां पे बनाया गया है, सूची टेबल। We have listed these 7 points. यहाँ पे 7 बातों को लिखा गया है। And this is not an exam. This is just for you to reflect on where you are today. तो ये कोई परीक्षा नहीं, ये आपको दर्शाता है कि आप अपने जीवन में वर्तमान में किस स्तर पर हो। Right? Take a few minutes to, first of all, rate yourself on a scale of 1 to 5. If you feel you're very prepared, you put 5. If you feel I have a lot to prepare myself, you put 2. यहाँ पे देखते One हैं, or two or यहाँ something पे like that. देखते हैं कि तैयारी अंक यहाँ पे लिखा है। ये तैयारी का जो अंक है 5 नंबर है। इसमें से अपने आप को आपको अंक देना है कि पहला जैसे सर्वोत्तम बनना है, उसमें ये अंक देना है। 5 नंबर से आप अपने आप को कितने नंबर देना चाहते हो, आप कितने तैयारी अपने आप में देखते हो। समझ में आ रहा है सबको? Okay, I'm not going to ask you. This is just for your own, for you. मैं तुमको पूछने वाला नहीं हूँ, ये केवल आपके लिए है। Okay, so how prepared are you? किस तरह आप तैयारी किए हो अपने आप And की? in the next box, are there things that you feel you need to work on? तो दूसरा जो है कि दूसरा जो बॉक्स है, तैयारी के अंक के बाद जिन बातों पर आपको काम करने की जरूरत है, उन बातों की ओर आपको लिखना है कि इस क्षेत्र में मुझे इस पर काम करना है। Okay, just be honest. Nobody's going to check. ईमानदार रहे आप, कोई आपका ये कोई चेक नहीं करने वाला है। Your friend is not going to come and say, "Hey, what did you write? What did you write?" आपका मित्र आके ये नहीं कहा कि ये क्या लिखा आपने। No, it's just for you. Or if you want, you write in some language they can't read. अगर आप चाहे तो आप ऐसे भाषा में लिखे जो किसी और को समझ में ना आए। You write in one secret language आप एक ऐसे गुप्त भाषा में लिखे that they can't understand. Even if they ताकि आपके मित्र को कुछ समझ में ना आए कि आपने क्या लिखा है। Okay, so Please. just take a few minutes, थोड़ा समय लीजिए आप, and then I want to take some time to pray with us, और उसके बाद में कुछ समय लूंगा प्रार्थना करने के लिए। asking God to work in our hearts and lives. और परमेश्वर को पूछिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे। Because sometimes, especially when it comes to emotional problems, or when it comes to hurts and wounds, or when it comes to bondages, these 3 areas, we need help. और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भावनात्मक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं या फिर अंदरूनी से हमें चोट लग जाता है, तो ये हमें जरूरत है कि इस पे हमें कार्य करना है। And in these times of prayer, God brings a healing, God brings a deliverance, God brings a release from either the trauma or the hurt or the bondage or that negative emotion they're carrying. तो जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। भले ही कोई हादसा से आप गुजरे हो या आपके साथ में कुछ गलत हुआ हो या फिर आपको चंगाई की जरूरत हो, नकारात्मक से आप जूझ रहे हो, नकारात्मक बातों से, यादों से जूझ रहे हो, तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा। Right? So ठीक है। that's why we are going to take some time to pray. इसीलिए हमको कुछ समय लेना है ताकि हम आपके लिए दुआ कर सके। Right? So we will take next 10 minutes for you to finish doing this. अगले 10 मिनट तक आपको दिया जाएगा, आपको ये बातों को भरना है इसके अंदर, And after 10 minutes, we're going to pray. और उसके बाद में हम दुआ करने वाले हैं। Okay? Where we are expecting God to, for those who need healing, let God do that work हम of healing. अपेक्षा करते हैं परमेश्वर से जिसको चंगाई की जरूरत है, परमेश्वर उसको चंगाई दे ताकि। Right? So online students, if you can also take some time to do this, it'll be useful. If you are already married and then, you don't need to necessarily do this, but you can reflect
and think about if there are areas that you need God to touch and heal you. Prepare your heart for this time of prayer that we will go into in about 10 minutes. सो ऑनलाइन जो स्टूडेंट उनसे भी निवेदन करता हूं, अगर आपका विवाह नहीं हो गया तो आप ये भर सकते हैं, अगर आपका विवाह हो है तो आप इस पे नजर डाल सकते हैं कि किस क्षेत्र में मुझे कार्य करना है, और उसके बाद में हम प्रार्थना करने वाले जिससे परमेश्वर आपको चंगाई दे। All right, so we'll just wait for 10 minutes, do that, and then we will continue. हम 10 मिनट लेंगे, उसके बाद में हम दुआ करेंगे। I will pause the recording temporarily, and then we'll start the recording again after 10 minutes. तो अभी मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा समय के लिए रुकूंगा, उसके बाद में फिर शुरू करूंगा।